Welcome back, viewers. You are watching the channel Literature Lover, and I am Intezar Hussain with you. Today, I am going to discuss about major themes in King Lear. First of all, we are going to take a look on major themes. मेजर थीम्स की जहाँ तक बात है तो हमारे पास किंग लियर के अंदर जो मेजर थीम्स हैं वो ये हैं. फर्स्ट वन इज़ पावर, सिस्टरहुड, लव, द फूल एंड हिज फंक्शन, madness. Next one is representation of nature. These are the major themes discussed in this play. Let's take a look one by one in a full detail. First one is power. Characters Edmund and King Lear. These two characters show this theme. The power directs the fates of characters and is presented in two forms. First one is wicked, represented by character of Edmund, who is unsatisfied with his condition of bastard. Now gods stand up for bastards. His search of power brings him to discriminate familial love. He is the evil of the play with Gondrel and Regan, and he is the embodiment of treacherously power. So here, power is presented as wicked representation. Next one is healthy representation of power. Healthy, represented by King Lear's character. He is an aging and naive king who is manipulated by his two eldest daughters. From the text, we can understand that previously Lear was a good king, and only because of his two daughters' viciousness he became an useless, power, corrupted and removed from his title. तो ये हमारे पास पावर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीक़ों से है. एक उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो विकेड है और दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हेल्दी रिप्रेजेंटेशन. तो जो विकेड रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ पावर है, वो है करैक्टर एडमंड से, और जो पॉजिटिव व्यू पॉइंट है पावर का वो है किंग लियर से. इन जो करैक्टर है किंग लियर, ये हमारे पास कोटेशंस हैं जहाँ से आप लोग इसको कोट कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम में इसको कोट करना चाहते हैं. ये लाइंस को आप गौर से पढ़ लें और कोटेशन के लिए पास रख सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है वो है सिस्टरहुड. सिस्टरहुड जो थीम है वो करैक्टर्स गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया से रिप्रेजेंट किया गया है. तो इसको डिटेल से देखते हैं. Gonrel, the eldest daughter, she is also the strongest. She is the one who leads the alliances against Lear. Next one is Regan. She follows her sister's and husband's advice. She becomes ruthless, taking courage from the eldest sister, but she is not at all weaker. ये जो रीगन है वो अपनी सिस्टर और हस्बैंड की जो एडवाइस है उसके ऊपर अमल करती है. इसका मतलब है कि इसकी अपनी थिंकिंग या अपनी कोई अप्रोच नहीं है, लेकिन ये दूसरों की जो अप्रोच है उसको फॉलो करती है. लेकिन कहता है ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा वीकर नहीं है. कार्डेलिया द यंगेस्ट सिस्टर, शी अंडरस्टैंड्स द सिस्टर्स बैड इंटेंशंस एंड शी वांट्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम. She has not got political aims, but she is more sentimental. तो कार्डेलिया जो है वो इस प्ले का एक पॉजिटिव करैक्टर है, जो कि एक गुड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड लेडी है, जो कि उनमें से छोटी है, और इसका कोई नेगेटिव एम नहीं है, कोई नेगेटिव मिशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, बल्कि ये जो है वो बहुत सेंटिमेंटल है. और ये अपनी सिस्टर्स की जो अटेंशन है उनको भी जानती है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो करैक्टर है वो नेगेटिव साइड पे
नहीं गया, इसने अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको मैनिपुलेट नहीं होने दिया। The love test. It is beginning of everything. Cordelia is disgusted by her sister's phony declarations, and it seems that she wants to distinguish herself from them. The alliances between Gondrel and Regan, their relationship is not of love, but it is purely of personal and political interests to take the power against the father. तो ये जो दोनों गॉन्ड्रेल और रीगन हैं, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल है और वो पर्सनल बेनिफिट्स और गेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई लव या इमोशंस या एटसेट्रा के ऊपर नहीं है। द लव फॉर एडमंड. Edmund's coming breaks off the forced relationship between the two sisters, both in love with him. This conflict between the sisters is even worse than the first one. Gondrel declares, I had rather lost the battle than that sister should loosen him and me. And at the end, she will poison Regan and kill herself. तो ये भी एक जो है बड़ा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है इस प्ले का कि दोनों सिस्टर जो हैं वो उसको चाहती हैं और एट द एंड पॉइजन दे के उसको भी हलाक कर दिया और खुद भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो है लव। लव जो थीम है वो कौन कौन से करैक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, वो है किंग लियर, गॉनरेल, रीगन, कार्डिलिया एंड ग्लोसेस्टर। द लव इज़ प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। लव की जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक है फादरली लव, फेक लव, अनेस्ट लव, लव दैट किंग लियर फील्स फॉर हिज 3 daughters एंड दैट ब्रॉट हिम टू डेथ। यानी वो वाला लव, वो वाली मोहब्बत जो किंग लियर अपनी 3 बेटियों के लिए फील करता है, महसूस करता है, वो फादरली लव है। फेक लव, love that Gondrel and Regan pretend to feel for their father in order to appropriate Lear's power। यानी दोनों जो बहनें हैं गॉनरेल और रीगन, वो जो अपने फादर के लिए जो एक ड्रामा रचाती हैं, जो एक रिप्रेजेंट करती हैं, प्रिटेंड करती हैं कि उनको अपने फादर से प्यार है, मोहब्बत है, वो बेसिकली फेक लव है, क्योंकि उनको फादर से लव नहीं था बल्कि उस फादर की पावर से था, उसकी ताकत से था। अनेस्ट लव, love that Cordelia feels for her father, due to which she was forced to leave her home। यानी वो वाली मोहब्बत जो कॉर्डिलिया अपने बाप से करती थी, किंग लियर से, जिस बेस पे उसको इवन के घर भी छोड़ना पड़ा, वो कहते हैं अनेस्ट लव था। यानी अनेस्ट लव की एक एग्जाम्पल्स थी। तो इसके साथ ही ये वाला जो हमारा चैप्टर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर उम्मीद है कि आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।